ਮੰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਂਸ ਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣੂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਟ ਆਊ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਊ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨ 100% ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਵਾਂਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਰਸੀ ਅਤੇ HF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ DNA ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ DNA ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੋਹਰਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਰਾਠੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਗਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਥਾਰ ਪਾਰਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ HF ਅਤੇ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਵਾਂਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਤੇ HF ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਬੁੱਲ ਆ। ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਣ ਲੰਬੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਰੰਟਡ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸੱਜਣੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਵਾਂਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਆ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਧੋਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜੀਨੋਮਿਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਬੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਲ ਆ ਉਹ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਬੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਡ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਲ ਆ, ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। गौतम जी अपने नाल होंगे। भैया नमस्ते। नमस्कार जी। भैया पहले तो आप मेरे को ये बताओगे जहाँ के क्या प्रिकॉशन है? मैं कोई आदमी आता है, मैं विजिटर आया हूँ, तो मैं जहाँ को देखना चाहता हूँ जी, तो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा मेरे को? तो सबसे पहले तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आपको पहले प्राइड अपॉइंटमेंट लेनी होगी जी। एक स्पेसिफिक दिन आपको दिया जाएगा जी। उससे पहले आपको 2 दिन ये कहा जाएगा कि आप किसी भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ उसके ऐसे जानवर के साथ ना रहें जी, जिससे कि आप ऐसा स्रोत, आप एक सोर्स बन सकें डिजीज़ का स्प्रेड होने का जी। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे स्पेसिफिक, तो आपको एक स्पेसिफिक व्यक्ति अलॉट होगा जो आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा जी। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ हमारी एक पॉलिसी है जो है विजिटर्स पॉलिसी जी। तो उस विजिटर पॉलिसी को आपको उसको साइन करना पड़ेगा। तो विजिटर पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं जी। जैसे उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप यहाँ आएंगे
तो आपको अपनी गाड़ी को डिसइंफेक्ट करके ही अंदर आना होगा जी। क्या मैंने करवाई है या नहीं करवाई है जी। उसके बाद मैंने साफ़ कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं जी। मैं ये एग्री करता हूँ कि मेरे को जहाँ जहाँ जगहों बहुत सी जगहों में आपको जूते उतार के जाना होगा जी। बहुत सी जगहों में आपको ये कपड़े बदल के जाना होगा बहुत सी जगह में आपको ऊपर से प्रोटेक्शन पहन के जाना होगा तो वो मैं सब करूँगा जी। जैसे ही आप अंदर आएंगे आने के बाद आपको अपने हाथ डिसइंफेक्ट करने होंगे साबुन से धोने होंगे और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना होगा जी। उसके बाद ही आप अंदर आ सकते हैं पैरों को डिप करके आना होगा जी। और जब आप अंदर आएंगे जी। तो आपका एक सेट एरिया है आप वहाँ जा सकते हैं जी। उसके बाद आपको जो अगर आपने बाई चांस लैब में जाना है तो आपको लैब के अलग प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जी। जैसे एंटर करते टाइम ही आपको अपने शूज़ भी उतारने पड़ेंगे कपड़े भी बदलने पड़ेंगे मास्क भी लगाना होगा टोपियाँ भी लगानी होगी हाथ दोबारा से वो लैब वाले आपसे डिसइंफेक्ट कराएंगे जी। और उन्हीं के कपड़े वही पहन के आप अंदर जाएंगे और आते टाइम उसे उतारेंगे अगर आपको एनिमल्स की साइड जाना है तो आपको अलग से एक प्रोटोकॉल है कि आपको उस तरफ से गुजरना होगा अगर आप प्रिकॉशनरी शावर लेके कपड़े बदल के उसके बाद एनिमल साइड की अलग ही एंट्री है एनिमल्स और लैब कभी मिक्स नहीं होते हैं जी। अगर एनिमल साइड में आप जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप लैब में नहीं आ सकते हैं जी। पहले आप लैब में जा सकते हैं फिर एनिमल में जा सकते हैं पहले लैब में चलें पहले लैब में बताते चलेंगे चलो बिल्कुल चलिए आइए जी आइए भैया लैब में हम पहले जा सकते हैं लैब में आप पहले जा सकते हैं जी क्योंकि आप अगर लैब में जा रहे हैं तो यहाँ से आपको इस रास्ते से जाना होगा जी जहाँ पे सिर्फ लैब के लोग ही जा सकते हैं तो लैब में आप पहले जा सकते हैं जी लेकिन एनिमल्स से इंटरेक्ट करने के बाद जी आप वापस लैब में नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारी लैब का एनिमल फैसिलिटी से कोई संपर्क ही नहीं है मतलब मैं अगर एनिमल में कोई काम करता हूँ तो मैं इधर नहीं आ सकता नहीं आ सकते आप उसके लिए आपका रहने की जगह भी अलग है खाना पीने करने की मीटिंग करने की जगह भी अलग है जी आप नहीं कर सकते इसमें सिर्फ जो एनिमल साइड में जो डॉक्टर्स हैं जी अगर उनको प्रोडक्शन के लोगों से डॉक्टर से मीटिंग करनी है जी तो वो मंडे मॉर्निंग कर सकते हैं फर्स्ट टाइम करने के बाद उसके बाद वो आगे जा सकते हैं तो यहाँ से जो जाएंगे इसमें तो जब ये डोर है ये बेसिकली एयर शावर से है इसलिए ये एंटी रूम है जब हम इसमें घुस गए हैं तो ये एक एंटी रूम है एंटी रूम मतलब बाहर के एनवायरनमेंट का अंदर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो तो बीच में एक ये बैरियर है जो एयर बैरियर है और एक रूम है यहाँ ये लॉकर्स हैं आप अपना सामान रख सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रख सकते हैं उसमें यहाँ पे आपको ये यहाँ के स्लीपर्स पहनने पड़ेंगे जी और आप ये पहन के हम अंदर जा सकते हैं इसमें ये सौरभ हैं सौरभ हमारी यहाँ अंदर इस लैब में हेड टेक्नीशियन है ये अंदर लैब के प्रोसेसेस को और प्रोसेसिंग को देखते हैं जा रहे हैं सबसे पहले सीमन प्रोसेसिंग लैब में एक्चुअली ये एक ऐसी फर्स्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है जहाँ पर सीमन भी और एम्ब्रियो भी दोनों में काम होता है जी इसमें तो ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड कैंपस है यहाँ का एक इंडिया का जहाँ तीनों चीज़ें होती हैं सीमन भी होता है एम्ब्रियोज भी होता है और जेनेटिक स्टडीज़ और जेनेटिक इवैल्यूएशंस के लिए पार्ट्स भी होता है चलिए हाँ जी आइए तो जहाँ क्या ये एयर शावर है इसमें से आप जो क्योंकि जब बाहर आ गए हैं उसमें से भी अंदर आएंगे जब ये बंद हो जाएगा दरवाज़ा तो इस साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक आप इस एयर से नहीं जाते तो ये ऑटोमेटिकली अभी ऑन होगा अब आप खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा तो जब ये आपको एक बार 10 सेकंड के लिए जब ये आपको ये शावर से आप गुजर जाएंगे तब ये दरवाज़ा खुल जाएगा तब आप इस साइड आ सकते हैं यहाँ आ जाते हैं तो एंटी रूम से हो गए आप एयर शावर हो गए आपने फुटवेयर बाहर डाल दिया अंदर का ही है तो दिस इज़ द चेंज रूम जहाँ पे आपको अपने कपड़ों में चेंज करना होगा भैया प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जितना काम करना पड़ता है नहीं जब यहाँ हमारी लैब प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट की थी एक तो वो भी सब करके आए थे तो ये एक नेक्स्ट एरिया है जो एक चौड़ा एरिया है वैसे इमरजेंसी एग्जिट है अगर कोई बड़ा सामान आपका है जो लेके आना है तो वो कभी कभार यहाँ से आता है
अदरवाइज नहीं रहता है। तो अब आप जो हैं आप स्टेराइल्ड एरिया में हैं, इसलिए आपको इतना करना पड़ा। अब यहाँ इस एरिया से आगे जो है टोटल स्टेरलाइजेशन है, जिसके अंदर आप बैक्टीरियल कंटामिनेशन वगैरह को अवॉइड करने के लिए सब काम करते हैं। जो पैसेज है और ये एक, हालांकि ये भी इमरजेंसी एग्जिट है क्योंकि एक और दूसरी एग्जिट, इस लैब के 3 एंट्री एग्जिट हैं अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। लेकिन यहाँ से हम कंज्यूमेबल्स अंदर लाते हैं। लेकिन इस लैब की एक बड़ी खासियत है, अगर आप देखेंगे तो दीवारों पे नीचे से ऊपर तक टाइल्ड है, इवन कॉर्नर जो है वो भी स्टील कोटेड है, और जो डोर्स हैं वो जो आप ऑपरेशन थिएटर में देखते होंगे ऐसे डोर्स हैं जो डबल लेड हैं, नॉन स्टिक हैं और नॉन शेडिंग है, कोई मटेरियल गिरता नहीं है इससे। तो ये जो हाईएस्ट क्वालिटी लैब होती है उनमें ये मटेरियल यूज़ करना मैंडेटरी रहता है। हालांकि इसमें नहीं है हमारे इसमें, लेकिन फिर भी हमने ऐसा इसको रखा है। यहाँ से हम जब लाते हैं तो हम कंज्यूमेबल्स जो हैं एक बारी यहाँ ला के स्टोर करते हैं, और हमारे पास 3 से 6 महीने का स्टॉक रहता है किसी भी कंज्यूमेबल का, स्पेशली कोविड के ब्रेकडाउन के बाद। तो हम एक बारी आ जाता है, यहाँ रखा जाता है, और यहाँ से हम इसको कुछ भी सामान चाहिए तो वो यहाँ आता है। ये स्टरलाइजेशन है, इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें स्टेराइल होती हैं जो इस लैब में यूज़ हो रही हैं। जैसे कि लैब में जो ग्लासवेयर यूज़ हो रहा है कोई छोटा मोटा, उसी को हम यहाँ स्टेराइल करते हैं। अदरवाइज 99% जो है वो यूज़ एंड थ्रो वाले आजकल सामान आए हुए हैं, आप एक बार यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं। लेकिन कुछ ग्लासवेयर है जो आप उसको स्टेराइल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ट्रिपल डिस्टिल वाटर है सामने, तो आप किसी को भी रिंस करने के लिए भी ट्रिपल डिस्टिल वाटर का ही यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी वाटर रेसिड्यू या कुछ उस ग्लास में रह ना जाए। छोटे बीकर हैं या वॉल्यूम फ्लास्क हैं या कुछ हैं, वो आप स्टेराइल कर देते हैं, और स्टेराइल करने के बाद कवर करके उसको यहाँ रख देते हैं, और यहाँ से आप उसको यूज़ करने के लिए ले जाते हैं। तो जब यहाँ पे आप इस चीज़ को स्टेराइल कर देते हैं सारे को, तो फिर हम आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मीडिया रूम। आइए, ये स्टरलाइजेशन सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ यूज़ हो रही है चीज़, ये मीडिया रूम है। यहाँ पर हम रोज़ फ्रेश मीडिया प्रिपेयर करते हैं जो सीमन प्रोसेसिंग में यूज़ में आता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये लेमिनार फ्लो है, इसके नीचे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, क्लास 100 एरिया रहता है जो जनरली इन्फेक्शन फ्री, बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट है। इसके अंदर ही रोज़ हम एग योग बेस्ड अपना एक्सटेंडर और डाइल्यूटर तैयार करते हैं। सामने एक स्पेशल आप मशीन देख रहे हैं, वो बेसिकली वाटर के लिए है। कई डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होते हैं, आरओ वाटर है, डिस्टिल्ड है, डबल डिस्टिल्ड है, ट्रिपल डिस्टिल्ड है, एचपीएलसी है, एचपीटीएलसी ग्रेड वाटर है, पर ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रेड वाटर है, मतलब ये अल्ट्रा प्योर वाटर है। ये इस पे कोई भी आपको वो रेसिड्यू नहीं आती। हालांकि इस पानी की शायद इसमें ज़रूरत नहीं है, एचपीएलसी लेवल ग्रेड पानी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी काम करेंगे आगे, तो उसके लिए हमने ये रखा है। ये रेफ्रिजरेटर है, और दूसरे चीज़ों को रखने के लिए कंज्यूमेबल्स कुछ जिनको 2 से 8 डिग्री में अंदर रखना होता है। तो यहाँ पे हम फ्रेश मीडिया बनाते हैं, और फ्रेश मीडिया बनाने के बाद एक उसके उस तरफ एक पास विंडो है, उस विंडो से हम आगे लैब में दे देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सीमन बनाने के लिए जो एक्सटेंड करना है उसका वो वाला एक्सटेंडर या वॉल्यूम यहाँ तैयार हो गया। सीमन कहाँ से आएगा? जो आपने बाकी सीमन स्टेशन देखे होंगे पूरे भारत में, उसमें आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स में जो सीमन कलेक्ट करते हैं तो एवी होती है, वो भी अंदर आ जाती है, वो वॉश होती है, उसी कॉमन स्टरलाइजेशन एरिया में स्टेराइल होती है, और उसके बाद जब स्टेराइल होकर रख लेते हैं तो कलेक्शन के लिए वो एक विंडो बनाई है, उससे पास करके लैब से वो दे देते हैं, साथ में है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई आप देखेंगे इस बिल्डिंग में कोई विंडो नहीं है, सिर्फ एक पास विंडो है उधर स्टरलाइजेशन की तरफ। अगर हमें कुछ सामान अंदर लेना है तो हम उस डायनामिक पास विंडो के थ्रू लेते हैं, जो उसका दरवाज़ा अगर बाहर खुला है तो अंदर नहीं खुलता, अंदर खुला है तो बाहर नहीं खुलता, और वो यूवी से स्टेराइल हो जाता है। तो स्टेराइल होने के बाद लेते हैं। जैसे अब हमें एग्स चाहिए अगर, तो स्पेसिफिक सोर्स से आते हैं, और एग पहले उधर से आते हैं, उसको लेके डिसइंफेक्ट क्लीन करके उसके बाद हम उसको यहाँ ला के यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ से आगे काम करते हैं। इसके बाद आगे जब वॉल्यूम उधर चला गया, जो डाइल्यूएंट उधर चला गया, एक्सटेंडर उधर चला गया, तो अगली जो लैब है वो हमारी सीमन प्रोसेसिंग लैब है। तो इसमें यहाँ पे सीमन प्रोसेस होता है। सीमन फिर कहाँ से आता है? अगर विंडो से नहीं आता तो कैसे आता है? तो सीमन यहाँ न्यूमेटिक ट्यूब के थ्रू आता है,
जी। मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं जी। बेसिकली यहाँ से सीमन आता है। जी। जिसमें ये आ रहा है। आवाज कैसी आ रही ये है? तो एक सक्शन है ना, जी। एयर सक्शन है। तो ये आपको दिख रहा है आदमी भागता हुआ, जी। ये है। कितने टाइम पर उन्होंने भेजा है जी। ये आप रीड कर सकते हैं। तो लगभग 25 से 26 सेकंड में ये कार्ट्रिज आ जाता है। जी। अब इस कार्ट्रिज के अंदर ये तो सैंपल भेजा है, तो इसके अंदर हम सीमन ट्यूब जो है सैंपल की वो डाल के भेजते हैं। जी। और जब यहाँ से आपने डाल दिया जी। तो आप इसको ऐसे तो यहाँ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वापस भेजना है तो हम इसको वापस भी भेज सकते हैं। नंबर 202 ये 0 ही है ना? जी। जी। 2 ये यहाँ से वापस चला जाएगा। इसको ये वैक्यूम गया। क्या? जब ये गया तो यहाँ लग गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे, आपने भेजा है 7 तारीख को और 12:08 पर पहुँच गया है। जी। तो 22 सेकंड में ये वापस चला गया। जी। तो यहाँ से वहाँ ऐसे ही वापस ये चलता है। उधर से आ गया भैया यहाँ। यहाँ और यहाँ से आपने सीमन लेके इसको वापस भेज दिया, सीमन को ले आया आप यहाँ। जी। तो इस वाटर बाथ में यहाँ पर ये 32 डिग्रीज 31.5 डिग्रीज पे यहाँ रहता है। जी। यहाँ से उसकी एक प्राइमरी पहले जांच होती है, जी। जो रॉ सीमन आया है जी। कि क्या है। तो उसके लिए कंसंट्रेशन देखनी है कि उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, कितने सेल्स हैं। जी। उसके लिए ये ऑटो डाइल्यूटर और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। जी। तो इसमें ये डाल के आप इसमें डाइल्यूट करते हैं 1:1 में, और इसमें डाल के आप इसकी रीडिंग नोट करते हैं। इसमें ये रीडिंग देता है कि कितनी कंसंट्रेशन है। जी। अगर 500 मिलियन पर ml से ज़्यादा है जी। तब तो वो ठीक है आगे जाने के लिए। जी। अगर उससे कम है तो वो फेल है, सैंपल फेल है। फेल है तो जी। उस सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी। तो जब प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ एक रिजेक्शन का बॉक्स रहता है, वो उसके अंदर आप डिसइंफेक्टेंट एक रहता है नॉर्मल, उसके अंदर डाल देते हैं पानी के साथ। जी। और अगर मान लीजिए वो कंसंट्रेशन ठीक है जी। तो उसके बाद आप यहाँ पर मोटिलिटी चेक करते हैं। जी। जहाँ पे यहाँ पर जी। तो ये जैसे निकॉन का टोकाई हिट वार्म स्टेज के साथ है। जी। हर चीज़, स्लैब का टेम्परेचर 20 डिग्री है, जी। लेकिन बैकग्राउंड टेम्परेचर, लेकिन जो भी काम आप सीमन पे करेंगे वो 37 डिग्रीज पे करेंगे या 38 डिग्रीज पे करेंगे। जी। तो ये वार्म प्लेट है, जी। आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। ये 37 डिग्रीज पे ही रहेगी। जी। ये भी रहेगी, ये भी आप 37 डिग्रीज पे रहेगी, जिसके अंदर आप, ये ड्राई बात है। ये प्लेट है, ये भी 37 डिग्रीज पे ही रहेगी। वाह। इस प्लेट का जो है 38 डिग्रीज टेम्परेचर अभी लगा हुआ है। तो 37 to 38 टेम्परेचर पे ही हम काम करेंगे। जी। इसका ये फ़ायदा है कि जितनी देर भी रहेगा जी। सीमन 37-38 डिग्रीज पे रहेगा। जी। आपने वहाँ से कलेक्ट किया, 32 डिग्रीज पे रखा, अगर वो पास है इसकी मोटिलिटी में, मोटिलिटी जो है वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। जी। मतलब जो सीमन आया उसमें कुदरती तौर पर कुछ तो डेड होंगे, जी। कुछ स्लो मूविंग होंगे या डेड होने वाले होंगे, जी। क्योंकि ये प्रोसेस ही चलता रहता है। कुछ नए बनते हैं तो नए बनते होंगे, और जो सीमन है बाकी मूव कर रहा होगा। जी। तो अगर 70% से ज़्यादा है, 500 मिलियन से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब वो आगे पास है। जी। एबनॉर्मलिटी काउंट करेंगे, अगर उसमें टोटल एबनॉर्मलिटी 15% से ज़्यादा है तो भी रिजेक्ट है। जी। तो ये तीनों क्राइटेरिया पास होने चाहिए। 500 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, 70% से ज़्यादा उसकी मोटिलिटी होनी चाहिए, और 15% से कम उसमें एबनॉर्मलिटी होनी चाहिए, तब वो सीमन पास हो जाता है। जी। जब वो सीमन पास हो जाता है तब उसको हम यहाँ पर जो हमने एक्सटेंडर और वॉल्यूम बनाया, वो वहाँ से आया है वॉल्यूम एक्सटेंडर, जी। उसको जो हमने बनाया है हम उसको उसमें मिक्स करेंगे। जी। वो उस हिसाब से करेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको बता देता है जी। कि ये कंसंट्रेशन है। जी। आपको स्ट्रॉ के अंदर 0.25 mm स्ट्रॉ के अंदर 20 मिलियन सेल्स रखने हैं। जी। 20 मिलियन सेल्स रखने हैं, तो उसके लिए कितना आपको एक्सटेंडर लगेगा जी। वो मशीन बता देती है आपको। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है, वो आप कैलकुलेट भी करते हैं और मशीन भी बताती है। एक साथ में ट्रैवलर पेपर चलता है। जो आपने ये कर लिया, जी। आपने प्रिंट कर ली स्ट्रॉज, और जो स्ट्रॉज प्रिंट हो जाती हैं यहाँ डालने के बाद आपको क्या टाइप करना है वो आप बुल नंबर, बारकोड, ये वो आपने कमांड दे दी है। जी। कमांड देने के बाद वही
कि लोगो है, कोड है, बुल का नेम है, बुल का नंबर है, ब्रीड है, जो इनाफ का नंबर है, बैच नंबर है, ये जो डैम यील्ड है, और फिर उसके बाद एक्विवेंस जो कंपनी और जो हमने ADG उस जो पर है, लिखा देखा वो इस पे लिखना पड़ता है। हाँ, जैसे आपने क्वांटिटी डाल दी, कितनी प्रिंट करनी है, क्योंकि आपको सिस्टम ने बता दिया है कि ये वॉल्यूम एक्सटेंडर डालने के बाद कितनी प्रिंट होगी। ये यहाँ से प्रिंट होके उधर जाने लग जाएगा। देख बंदूखां को चलते, और ऊपर आपको काउंट देने लगता है वो उसमें। ये कितने हो वो गए? भी गए 40 हो गए। ऊपर हो गए, और आप उसको निकाल लीजिए और एक स्ट्रॉ देख लीजिए। ये हो जाएंगे प्रिंट भैया, ये प्रिंट हो जाएंगे। और जब आपको रिफिलिंग करनी है तो उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे। ठीक, यहाँ आपने फिर डेल्टा का सीवन लगा दिया है। ये मशीन एक तरफ से मशीन सील्ड है और दूसरी साइड एक तरफ से एक फैक्ट्री सील्ड है और दूसरी तरफ से ये मशीन भरती भी और सील भी करती है। आपके पास ऑप्शन है, एक स्ट्रॉ भरनी है, 2 भरनी है, 4 भरनी है, 3 भरनी है, कैसे भरनी है, या आप फिल कर देते हैं। राइट में सीमन लग गया, इसने ये भर दिया जी। नीचे वाली उठा लेना। ये अब आपके पास फिल्ड स्ट्रॉ आ गई। जब ये आपके पास फिल्ड स्ट्रॉ आ गई, यहाँ से ये इस मशीन ने सील कर दिया जी। और डाल दिया। जब ये स्ट्रॉ आ जाती हैं तो अब आप इसको क्या करते हैं, इस स्प्रेडर पे बहुत सारी आ जाती हैं जी, तो आप इस स्प्रेडर पे इसको फैला देते हैं ऐसे ऐसे। ये इसलिए फैला दिया है कि अब आप इसको उठाएंगे जी। तो ये उठ जाएगी। इस स्टैंड को उठा लीजिए आप, देखिए ये उठ गई ना, अब ये हवा में आ गई। जी। तो अब आप इसको कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में रखेंगे। अब हम ये बैकग्राउंड टेम्परेचर 20 डिग्री था, सीवन का टेम्परेचर 32 से रखा, 37 में वैलिडेट किया, डाला जी। थोड़ी देर तक यहाँ रहा है तो टेम्परेचर डाउन आ गया जी। प्रिंसिपल ये है कि जिस टेम्परेचर से शुरू किया था सीवन निकाला था, उसके बाद टेम्परेचर नीचे ही जाना चाहिए, वापस बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ से लेने के बाद इसको जब ये हो गया, क्योंकि जब आप एक्सटेंडर मिलाते जी। हैं तो इसमें आप क्यों मिलाते हैं, ये इसलिए मिलाते हैं कि जो शॉक लगेगा इसको -196 लिक्विड नाइट्रोजन में रहने से, जी। वो कम से कम लगे, जी। शॉक एब्जॉर्बड हो और इसको न्यूट्रिशन एनर्जी मिले, सीमन को, सीमन आगे जिंदा रहे। जी। क्योंकि जब आप इसको डाल देंगे तो वो बिल्कुल ही जी। एकदम -196 में जी। तो फ्रोजन हो जाएगा। जी। फ्रोजन हो जाएगा तो वहाँ रहेगा, और कितने भी साल जब तक वो लिक्विड नाइट्रोजन में है, फ्रोजन स्टेट में है, तो चाहे वो 10 साल हों, 20 साल हों, 30 साल हों, 40 साल हों, 50 साल हों, तब उसके बाद भी वो जिंदा है। जी। उसके बाद भी आप निकाल के एआई कर सकते हैं। जी। तो ये जो है आप इसको उठा लेंगे और फिर हम आगे कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में चलेंगे। मतलब उसके बाद जो सीमन है वो लगभग 4 से 7 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री के आसपास इनमें रखा रहेगा। जी। अब जो आप देख रहे हैं इस ट्रे में रखा हुआ है, और बल्कि जिसका आपने पैक किया था वही डेल्टा का सेकंड इजैकुलेट है ये, और पीछे मिस्ट्री का सीमन है। तो ये आपने एक के ऊपर एक लग के स्ट्रैक हो जाती हैं। जी। जब आपने यहाँ रखेंगे इसको 3 से 4 घंटे तक, जहाँ 5 डिग्री पे आ जाएगा। करेक्ट जी। 5 डिग्री 4 डिग्री पे भी आ जाएगा, अभी खोला होगा तो 5 डिग्री, तो 4 to 5 डिग्री, 5 डिग्री इज़ द आइडियल, ±1 डिग्री आप रख सकते हैं। जी। तो इसको आप 4 घंटे तक रखेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जो आपने क्रायो प्रिजर्वेंट मिलाए हैं जी। वो अच्छे से घुल जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जी। ताकि जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो उसको वो शॉक नहीं लगेगा। जी। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप इस मशीन में आ जाएंगे। जी। इसका पर्पस है बायो फ्रीज़र। जी। जी। ये बेसिकली मशीन है जो फ्रीज करती है। जी। अभी इन्होंने जो बैच चलाया तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। जी। ये लिक्विड नाइट्रोजन का प्रेशराइज्ड व्हीकल है। जी। जब आप इसमें ऐसे के ऐसे स्ट्रॉ लगा देते हैं, जी। एक दो रैक खाली होंगे तो वो लेके आना। तो ये जैसे इसमें लग गया, जी। ऐसे ही इसके ऊपर लग जाएंगे, इधर भी लग जाएंगे, उधर भी लग जाएंगे। तो 30 रैक्स तक आप इसमें लगा सकते हैं। एक की कैपेसिटी 175 है। जी। तो आप 5000 मतलब जो भी हुआ 175 इंटू 30 अप्रॉक्सीमेटली 5250 के करीब स्ट्रॉस जो है वो एक साइकिल में फ्रीज कर सकते हैं। जी। साइकिल 7 मिनट की है, 7 से 7.5 मिनट की। जी। आप बटन ऑन करते हैं, जी। अपने आप 7 मिनट में जी। साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जी। जब आप ऑन करेंगे 5 डिग्री से रखेंगे, जी। पहले जो है टेम्परेचर 5 डिग्री पर मिनट से गिरेगा 3 मिनट तक। 1 मिनट में 5 से 0, 0 से -5 और -5 से -10, 3 मिनट लगेंगे।
उसके बाद 40 डिग्री पर मिनट गिरेगा अगले 2.5 मिनट तक। तो -10 से 40 गिरा तो -50 हो गया 4 मिनट पर, -50 से -90 हो गया 5 मिनट पर, और -90 से -110 20 डिग्री बढ़ा आधे मिनट में, तो 5.5 मिनट में -110 हो गया। उसके बाद 20 डिग्री गिरेगा पर मिनट, तो 5.5 से 6.5 में -110 से -130 हो गया, और उसके बाद आगे 30 सेकंड और 6.5 से 7 मिनट, तो आगे 30 सेकंड में 10 डिग्री और गिर जाएगा, -140 पे ये रुक जाएगा। सीमन को फ्रीज करने के लिए -140 बहुत है, लेकिन क्योंकि हमें इसको एक ऐसी जगह रखना है जो -140 हो, हमारे पास कोई और साधन नहीं है। या तो हम बिजली चला करके -140 के डीप फ्रीजर्स रखें, वो महंगा है कि यहाँ से कहीं ले जा नहीं सकते, गांव में रूरल एरिया में बिजली नहीं है, नहीं आ रही तो क्या करें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर है, -196 से कम कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो -196 में स्टोर होता है, ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, छोटा कंटेनर है, मोबाइल है, 20, 25, 30 दिन उसमें चल जाता है, आप रिफ़िल करते रहिए, चलाते रहिए। पूरी दुनिया में ये इन्वेंशन सबसे अच्छी रही, तो लिक्विड नाइट्रोजन में हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसमें डाल दें, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं, जिसको हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब है जब तक क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट पास नहीं होते तब तक आप यहाँ तक टेम्परेरी होल्ड करते हैं सीमन को। तो ये सामने जो है वो सीमन होल्डिंग एरिया है, वहाँ पे सीमन होल्ड होता है जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल से पास नहीं होता। पास हो जाता है तो वो जो आपने बाहर डिस्पैच रूम देखा था, उस डिस्पैच रूम में चला जाता है और वहीं से आगे डिस्पैच होता है। अगर मान लीजिए किसी को चाहिए सीमन, तो लैब में कोई अंदर एंट्री नहीं करता है, ये वन वे प्रोसेस है, बस एक बार ही गया तो गया, नथिंग कैन एंटर बैक। जब वहाँ चला गया, वहाँ से फिर डिस्पैच बन के रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को चला जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो काम है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल लैब उस तरफ है, तो क्वालिटी कंट्रोल हम दूसरी तरह करते हैं। इस सब का रिकॉर्ड भी यहाँ सिस्टम में अपडेट होता रहता है, तो आपको ये पता रहता है कौन सी बैच है, कौन सी कहाँ है, किस कंटेनर में, किस कैनिस्टर में कौन सा बैच रखा गया है जो अभी पास होगा। तो अभी हम क्वालिटी कंट्रोल लैब देखेंगे। हम क्वालिटी कंट्रोल लैब में जा रहे हैं, तो जो भी एसी की स्मेल लेकर ही गैस लुक्स लाइक एसी की स्मेल है। तो यहाँ पर हम बैक्टीरियोलॉजी करते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, पीटीएम है, एक्रोसोम इंटीग्रिटी है, या फिर हम बैक्टीरियोलॉजी लगाते हैं कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन क्या है इसमें। और ये भी हम करते हैं कि फर्टिलिटी टेस्ट कितना है, हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट में क्या आ रहा है, लाइव डेड काउंट क्या आ रही है सीमन में। हर एक बुल की हर एक क्वार्टर हर मंथ सेलेक्ट और टेस्टिंग होती है। मतलब स्ट्रॉ बनने के बाद, फ्रीज होने के बाद, ये गारंटेड नहीं है कि वो लगेगा, वो जहाँ टेस्टेड होगा। करेक्ट। जब भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय ही होता है जब रिजेक्ट हो जाता है। तो जैसे वो टेम्परेरी होल्डिंग एरिया में था, जैसे कल का या परसों का बना, वो नेक्स्ट डे टेस्टिंग होती है। तो एक टेस्टिंग है पीटीएम, पोस्ट थॉर्म मोर्टेलिटी, जो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड है कि उसकी परसेंट इंटैक्ट एक्रोसोम, जो एक्रोसोम है वो इंटैक्ट होना चाहिए। थर्ड है जो होस्ट है, हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट, वो अलग है। इंक्यूबेशन टेस्ट अलग है कि 30 मिनट्स पे कितना है, 0 मिनट पे पीटीएम कितना है, 30 पे कितना है, 60 पे कितना है, 90 पे कितना है। तो 2 घंटे तक का होता है, तो वो 50% अगर 0 आवर पे है तो 2 घंटे पर 20% होना चाहिए। तो वो सारे टेस्ट होते हैं, जब वो ओके हो जाता है तो चला जाता है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं यहाँ जो रॉ सीमन पे होते हैं, जैसे होस्ट है, या कैसे पता लगेगा बुल फर्टाइल है, फर्टिलिटी है कि नहीं सीमन में, तो हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट है वो यहाँ होगा। जो इंटैक्ट एक्रोसोम टेस्ट है वो यहाँ होगा। जो और बाकी टेस्ट है जिसको एक होस्ट पी, होस्ट जीबी कहते हैं, वो भी यहाँ होता है। तो वो सारे टेस्ट होने के बाद, स्वीयर बनने के बाद, जब वो ओके हो जाते हैं, तब पहले तो बुल्स हैं, जो हर क्वार्टर में हर बुल का टेस्ट होना ही है रॉ सीमन में, हर एक का नंबर आना है। उसके बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हर रोज, हर बैच, आज जो बना वो कल, या परसों, छुट्टी है तो परसों, तो वो टेस्ट होगा और जाएगा। आपको 3 दिन के अंदर उसका टेस्ट करना है, नहीं तो उसके बाद सॉफ्टवेयर फ्रीज है, आप नहीं डाल सकते। तो आज जो बनाया, अगर वो 3 दिन तक टेस्ट नहीं किया तो वो बंद, अब आप वो नहीं डाल सकते, वो कंपलसरी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। या जो बुल रिजेक्ट हो गया,
जी। कोई मान लीजिए PTM 50% नहीं आया, जी। रिजेक्ट हो गया, हो जाता है, रिजेक्ट हो गया, तो वो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो सीमेन है वो डिस्पैच में नहीं जाएगा, ठीक। वो डिस्ट्रक्शन सेक्शन में जाएगा। उसकी एक कमेटी है, वो देख के डेटा करेगी कि ये रिजेक्टेड कितनी है, स्ट्रॉ इतनी है, रखो, वो देखेंगी, उसके बाद उसको आग लगा दी जाएगी। ठीक। ये